गुड मॉर्निंग बालकों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। चैप्टर कैसा चल रहा है? पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मैंने ऐसा भी बोला था ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चैप्टर अगर आपको कंप्लीट समझ में आ गया तो अगले कुछ चैप्टर जैसे कि इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चैप्टर इसके ऊपर ही है। मतलब ये चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आना ही चाहिए, तभी वो आगे के चैप्टर आपको समझ में अच्छी तरह से आएंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। फंक्शन में बोलता हूं, सपोज फंक्शन f(x) is continuous at some point x equal to a. Okay, then there are total two conditions. First condition is limit of function at x equal to a is exist, and second condition is limit equal to f of a. First condition limit exists, that means left hand limit and right hand limit both are exist and both are same. Okay, left hand limit and right hand limit both are exist and both are same. That means limit of function at x equal to a is exist. Okay, and second condition is limit equal to f of a. Okay, if function satisfies two conditions, first and second condition, then function is continuous at some point x equal to a. Okay, थोड़े सम हमने लिए थे, ओके, लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी वाले सम भी लिए थे। आज दूसरे सम की डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कैसा है। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) equal to 2x plus 7 if x less than 3. If value of x is greater than 3, then function is given by x square plus 4, and if x equal to x(3), then function is 30 at point x equal to 3. ओके, यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। कौन से पॉइंट पे? x equal to 3. देखो यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, कौन से पॉइंट के आगे? 3. अगर x की वैल्यू 3 से कम है, if x less than 3, then function is given. If x greater than 3, then function is given, and if x equal to 3, then function is given. यहाँ पे x की वैल्यू जो है 3 से कम है, 3 से ज्यादा है और एग्जैक्ट 3 है, तो फंक्शन अलग अलग दिए गए हुए हैं। ये खास आप याद रखो। अगर x की वैल्यू x नॉट इक्वल टू 3, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, if x not equal to 3, x not equal to 3 मतलब x less than 3 और x greater than 3, then function is unique. But here function is different for x less than 3 and x greater than 3. तो यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी होगी। देखते हैं कैसे करते हैं। तो फर्स्ट फॉर x equal to 3, first we find left hand limit, that is limit x tends to 3 minus fx. Limit x tends to 3 minus. What means of x tends to 3 minus? That means value of x is nearer to 3 but less than 3. Okay, here function is given for x less than 3, then 2x plus 7. Then we put fx equal to 2x plus 7. Now we apply limit. We apply limit, that means we put value of x, that is 3, means 2 into 3 plus 7. 3 2s are 6. 6 plus 7, that is 30. Now we have to find right hand limit, that is limit x tends to 3 plus fx. Now right hand limit, that is limit x tends to 3 plus fx equal to limit x tends to 3 plus. What means of limit x tends to 3 plus? X tends to 3 plus, that means value of x is nearer to 3 but greater than 3. Okay, यहाँ पे फंक्शन हमको दिया गया हुआ है, अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो फंक्शन है x square plus 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x square plus 4. Now we apply limit, that means we put x equal to 3, then here 3 square plus 4, 3 square, that is 9 plus 4 gives 30. Okay, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी हमको मिल गई। ओके, तो therefore limit x tends to 3 minus fx equal to limit x tends to 3 plus fx.
both limit, that means right hand limit and left hand limit, both limit are exist and both are same. That means limit of function is exist, means equal to limit x tends to 3fx and limit of function is 13. Okay, then here first condition is satisfied. Now we take second condition, and second condition is limit equal to f of a, but here point is given by x equal to 3. Then now we find f of a means f of 3. Now f of 3 means value of x is exact 3, then function is given by 13. f of a हमको मिल गया 13, तो therefore limit x tends to 3fx equal to same as f of a, that means f of 3. So therefore fx is continuous at point x equal to 3. मतलब यहाँ पे सम बहुत ही इजी था, ठीक है, बहुत ही इजी सम है। यहाँ पे फंक्शन में क्या दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन किया गया है कौन से पॉइंट पे, 3। क्यों, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है 3 से कम x की वैल्यू है तो फंक्शन क्या है, 3 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या है, और x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 है तो फंक्शन क्या है, और तीनों टाइम फंक्शन अलग अलग दिए गए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ fx is given by 5x minus 2, value of x is greater than or equal to minus 3, and if x less than minus 3 then function is given by 7x plus 4. Here we have to discuss continuity at which point, see here x equal to minus 3. Here function is given by if value of x is greater than or equal to minus 3. Okay, x greater than or equal to minus 3 then function is given by 5x minus 2, and if value of x is less than minus 3 then function is given by 7x plus 4. ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 से ज्यादा है और -3 जितनी है तो फंक्शन होगा 5x - 2, अगर x की वैल्यू -3 से कम है तो फंक्शन है 7x plus 4। मतलब यहाँ पे -3 से कम है x की वैल्यू, -3 से ज्यादा है x की वैल्यू, तो फंक्शन अलग अलग दिए गए हुए हैं, तो यहाँ पे सेम ऊपर के सम जैसा ही राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड देन फाइनली f of a. ओके, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। इफ both limit are same then limit of function is exist. Okay, if both limit are not same then limit of function does not exist. That means function is discontinuous at something point x equal to -3 or function is not continuous at x equal to -3. See here, first we have to find left hand limit. Now at x equal to -3, first we find left hand limit, that is limit x tends to -3 minus fx equal to limit x tends to -3 minus, what means of x tends to -3 minus means value of x is nearer to -3, but this minus shows value of x is near to -3 but less than -3. If value of x is less than -3 then function is given by 7x plus 4. Then here function is given by 7x plus 4. Okay, now we apply limit, that means we put value of x is -3 then 7 into -3 plus 4. Okay, 7 3s are -21, -21 plus 4 equal to -17. ओके, तो यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, एंड लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx इक्वल लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, एंड व्हाट मींस ऑफ x टेंड्स टू -3 प्लस means value of x is nearer to -3 but greater than -3. And if value of x is greater than -3 then function is given by 5x minus 2. Then put here function as 5x minus 2. Put value of x is -3, then 5 into -3 minus 2. 5 3s
-15 -2, that is -17. See here, left hand limit we find -17 and right hand limit also -17. Both limit are same. Okay, then limit of function is -17. So therefore limit x tends to -3fx equal to -17. Now we find f of a. f of a, that means a equal to here -3. Okay, यहाँ पे a जो पॉइंट दिया गया हुआ है वो है -3. तो f of a अब हम फाइंड करेंगे. यहाँ पे x की वैल्यू एग्जैक्ट -3 हो तो फंक्शन क्या है. यहाँ पे देखो x की वैल्यू एग्जैक्ट -3, then function is given by 5x -2. Then here 5 put x equal to -3 -2 same as -17. So therefore limit of function at -3 equal to f of a, that means f of -3. So therefore fx is continuous at x equal to -3. तो यहाँ पे फंक्शन x इक्वल टू -3 के आगे कंटिन्यूअस होगा. ऐसे ही दो सम है, मैं आपको घर पे देता हूं. ये सम होमवर्क में है. सेम डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ, ये सम है जो पहला सम हमने किया था उसके जैसा ही है. fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 4 x लेस देन -2 and if x greater than -2 then function is given by 5x plus 6 and if x equal to -2 then function is exact -4. यहाँ पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. कौन से पॉइंट पे? x इक्वल टू -2. नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन x लेस देन और इक्वल टू 0, दैट मींस वैल्यू ऑफ x इज 0 और लेस देन 0, देन फंक्शन इज गिवन बाय 10x plus 6 and if x greater than 0 then function is -6. यहाँ पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. कौन से पॉइंट? x इक्वल टू 0 के साथ. ये दो सम आगे के जैसा ही दो सम है, बहुत ही इजी है. ठीक है, ये आपको होमवर्क में देता हूं मैं. अगर कोई तकलीफ है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9428489667. यहाँ इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो. ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं. बहुत ही बढ़िया सम है. अगले सम में हमने क्या किया था? फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस की थी, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3 समथिंग समथिंग. यहां पे फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी ऑन r, मतलब सभी रियल नंबर पे कंटिन्यू है कि नहीं वो हमको चेक करना है, हमको डिस्कस करना है. ठीक है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑन r. यहां पे फंक्शन कैसे दिया गया है? वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, देन फंक्शन इज गिवन बाय x स्क्वायर माइनस 7. x लेस देन 2 देन फंक्शन इज गिवन बाय 3x माइनस 1 एंड इफ x इक्वल टू 2 देन फंक्शन इज गिवन बाय 9. तो यहां पे पहले हमको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी. कौन से पॉइंट के आगे? 2. तो एट फर्स्ट x equal to 2 है. First we have to check continuity at which point x equal to 2. क्यों? तो यहां पे फंक्शन x equal to 2 के आगे डिफाइन किया हुआ है. मतलब कि अगर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन अलग है. x की वैल्यू 2 से ज्यादा है और 2 से कम है तो भी फंक्शन अलग अलग है. ठीक है, तो यहां पे हमको पहले कंटिन्यूटी चेक करनी होगी at x equal to 2. Then here first we have to find right hand limit, then left hand limit, and then f of a. Okay, see here, first right hand limit and left hand limit. First we take left hand limit, that is limit x tends to 2 minus f equal to limit x tends to 2 minus. X tends to 2 minus means value of x is nearer to 2 but less than 2. And if x less than 2 then function is given by 3x minus 1 equal to 3 into 2 minus 1
then here 3 2s are 6, 6 minus 1, that is 5. Okay, the left hand limit is 5. Now we find right hand limit, then limit x tends to 2 plus fx equal to limit x tends to 2 plus, that means value of x is nearer to 2 but greater than 2, means x is greater than 2, then function is given by x square minus 7, then here function is x square minus 7. Now we put value of x is 2, then 2 square minus 7, 2 square, that is 4, 4 minus 7, that is minus 3. See here, left hand limit is 5 but right hand limit is minus 3. Both are not equal. Okay, both are not equal, then limit of function does not exist, then function is discontinuous at point x equal to 2. So therefore limit x tends to 2 minus fx is not equal to limit x tends to 2 plus fx. So therefore fx is discontinuous at point x equal to 2. Okay, now we discuss x की वैल्यू अगर 2 नहीं है तो कंटिन्यूटी चेक करनी है. x की वैल्यू 2 है, 2 है तो हमने चेक कर लिया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. अब चेक करेंगे अगर इफ x लेस देन 2, अगर x की वैल्यू 2 से कम है मतलब x लेस देन 2, देन फंक्शन इज फिक्स. इफ x लेस देन 2 देन फंक्शन इज फिक्स एंड फंक्शन इज 3x minus 1. Okay, and then function is 3x minus 1. तो अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन फिक्स है. कौन सा फंक्शन हुआ? 3x minus 1. तो कल हमने जो पहला सम पढ़ा था ना उसी तरह का सम आ गया. अगर x की वैल्यू 2 से कम है, 2 से कम मतलब क्या है? 1 0 minus 1 सभी वैल्यू जो 2 से कम है सब रियल वैल्यू which is less than 2, then function is unique and function is 3x minus 1. Then we take some general point. Suppose x equal to c which is less than 2 and c belongs to R. Okay, we take some point that is c and c is less than 2 and c belongs to R. That means value of c is all real number which is less than 2. Okay, now we discuss continuity for x less than 2. Now limit x tends to c fx equal to limit x tends to c. Function is unique, that is 3x minus 1. तो यहाँ पे हमको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? तो यहाँ पे यूनिक फंक्शन है तो सिर्फ यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी है, एक तो लिमिट और एफ ऑफ ए माने कि एफ ऑफ सी. अगर दोनों सेम हुआ तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c और x लेस देन 2. दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 2. मतलब कि 2 से जो छोटी वैल्यू है वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2 तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. देखते हैं. Now we put limit, then we put x equal to c, that is 3c minus 1. तो यहाँ पे हमको फंक्शन का जो लिमिट है वो मिल गया. अब हम फाइंड करेंगे f of c. f of c, fx equal to 3x minus 1, then f of c same 3c minus 1. So therefore limit of function at c same as f of c. So therefore fx is continuous for x equal to c which is less than 2 and c belongs to R. मतलब if x less than 2 तो फंक्शन यहाँ पे सभी वैल्यू के आगे कंटिन्यूअस होगा, सभी रियल वैल्यू की जो 2 से कम है वहां पे कंटिन्यूअस होगा. अब हम चेक करेंगे if x greater than 2, if x greater than 2 then function is
if x greater than 2 then function is unique, that is x square minus 7. ओके, यहाँ पे भी फंक्शन यूनिक है. ओके, x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो फंक्शन यहाँ पे यूनिक है, that is x square minus 7. Now we take some point, say x equal to k, ऊपर c लिया था तो यहाँ पे suppose x equal to k which is greater than 2 and k belongs to R. मीन्स k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा सभी रियल वैल्यू है. ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2 से ज्यादा सभी रियल वैल्यू के बारे में. ओके, देखते हैं सेम ऊपर के जैसा ही सम है. तो therefore पहले हम फाइंड करेंगे लिमिट, देन लिमिट x टेंड्स टू k fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k. Function is given by x square minus 7. Now we put limit, then we put x equal to k, that is k square minus 7. Okay, यहाँ पे लिमिट मिल गई. अब हम फाइंड करेंगे f of k and f of k. fx is given by x square minus 7. Then f of k, that is k square minus 7. f of k square. So therefore limit x tends to k fx equal to f of k. So therefore function is continuous for x greater than. तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस मिला कब? जब x की वैल्यू 2 से कम है और 2 से ज्यादा है. ओके, और x इक्वल टू 2 के आगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हमको मिला. तो यहाँ पे फंक्शन के बारे में हम क्या लिखेंगे? तो देखो ये fx is continuous for x belongs to R minus set 2. ओके, तो यहाँ पे फंक्शन पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस मिला, सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट है x इक्वल टू 2. तो यहाँ पे मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है. ठीक है, उसके जैसा ही सम है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन x क्यूब प्लस 2x ग्रेटर देन माइनस 2. इफ x लेस देन माइनस 2 देन फंक्शन इज 6 इनटू x प्लस 1 एंड इफ x इक्वल टू माइनस 2 देन फंक्शन इज एग्जैक्ट माइनस 6. फर्स्ट यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी कौन से पॉइंट पे? माइनस 2 की. क्यों? यहाँ पे फंक्शन हमको दिया गया हुआ है कि x की वैल्यू माइनस 2 से ज्यादा है तो क्या है, माइनस 2 से कम है तो क्या है, एग्जैक्ट माइनस 2 है तो क्या है. पहला सम जो किया था उसी तरह का है. फर्स्ट वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट विच पॉइंट? x इक्वल टू माइनस 2. देन वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट x लेस देन माइनस 2 एंड देन फॉर x ग्रेटर देन माइनस 2. ओके, तो सेम ऊपर के जैसा ही सम है. तो ये सम मैं आपको होमवर्क में देता हूं. ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को कांटेक्ट कर देना. मेरा कांटेक्ट नंबर है 9428489667. अब ये सब सम एक्स्ट्रा सम थे. ठीक है, अब हम बुक में टेक्स्ट बुक में जो सम दिए गए हुए उसके बारे में बात करते हैं. इलस्ट्रेशन 1, एग्जांपल 1. चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एट विच पॉइंट x इक्वल टू 1. यहाँ पे फंक्शन यूनिक दिया गया हुआ है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ यहाँ पे 2 वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो लिमिट और दूसरा f ऑफ a. तो यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे लिमिट, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1. फंक्शन है 2x प्लस 3. Now we put value of x is 1 in function, then 2 into 1, that is 2 plus 3 gives 5. Then limit of function is 5. Now we find f of a, that is f of 1. fx equal to 2x plus 3. Then f of 1, put x equal to 1, then 2 into 1 plus 3, same 5. So therefore limit x tends to 1 fx equal to f of 1. Therefore function for fx is continuous at which point x equal to 1. बहुत ही सिंपल सम है. उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 सेम
है चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सिर्फ दो चीज फाइंड करनी है, वो है लिमिट और दूसरा f ऑफ a दैट इज f ऑफ 0। तो पहले लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन इज गिवन बाय x स्क्वायर। नाउ वी पुट x इक्वल टू 0 देन लिमिट इज 0 and second thing is f of 0 that is f of 0 means fx equal to x square, then we take x equal to 0, then this side 0 square same 0, therefore limit x tends to 0 fx equal to f of 0। दोनों ही सेम मिला है हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन is continuous at x equal to 0। ओके अब एक्सरसाइज 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 उसमें पहला और दूसरा सम दोनों इसी तरह का है, तो ये सम आपको मैं होमवर्क में देता हूं। तो ये 3 सम हो गए, ये सम आपको कंप्लीट करना है। मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिया गया हुआ है, अगर कोई दिक्कत है तो कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है।